Assalamu alaikum. This is Rabiu Tahir, and you're listening to the Brown Girl Rants. Wow, I cannot believe this is finally happening, and I am recording a podcast right now. Because I have been saying from the past 3 years, like from the beginning of 2019, I have been till the end of 2022, I have been saying that I wanted to start a podcast. I want to start a podcast, and I never been able to start it. Because I think it takes a lot to like achieve what you want, and like this is not something that everyone does. Kyunki this is something that is out of the ordinary, and no one is doing it, so you don't have a physical example of someone doing it. So it takes a lot to make that decision and research on your own and educate yourself and actually do that thing. And I still don't know if I'll actually be able to put it up, क्योंकि अभी मतलब कि I have to edit it and I have to upload it, so I hope it goes smoothly. But if you're listening to it, so it went smoothly, so we hope you're listening to it. Secondly, I don't know if I think if you're listening to it, you probably know me, or you probably are closer to me, क्योंकि I don't think anyone who don't know me would be interested to listening in me, but we'll see. So let's talk about why I wanted to start a podcast. So I have been a huge YouTube fan, and I still am a huge YouTube fan. क्योंकि obviously when I was in university or college, so उस time I didn't have the attention span to watch a whole show, or मतलब I think watching a season or something like that is a big commitment. So I would always watch like vlogs and YouTube, क्योंकि मतलब कि they were the source of entertainment for me. So they were the things that I would watch on YouTube. और उसमें ये होता है कि with season you have to like be up to date, and you need more attention. With vlogs and stuff like that, you can like put on any vlog of any YouTuber. You don't need to have a whole context of things. Like they're entertaining and they're short. So I have always been a huge YouTube fan. So then saw that YouTubers started like recording podcast and launching podcast. So that made introduced me to the world of podcast, or which is or फिर मुझे I realized what podcast actually means. So podcast is derived from iPod, क्योंकि लोग iPod पे सुनते थे, and then cast is like broadcast का, तो it's podcast. But the irony is that के I don't have an iPhone, I am not recording this on a MacBook, so I have an Android and this is a Windows laptop. So but we're still recording a podcast. So I think that's a like interesting thing, that podcast is actually derived from iPod. But obviously Apple have a huge influence on this whole world. So, so I started seeing कि YouTubers have started like podcasts, तो मैं I started listening to it. उस वक्त I had an Apple, तो I downloaded. तो मुझे लगता था कि सिर्फ Apple वाले लोग ही podcast सुन सकते हैं, तो I downloaded Podcast World, and उस पे I started listening to podcast. तो उस वक्त I would listen to podcast जब मैं यूनिवर्सिटी में जा रही होती थी, क्योंकि my university was very far away. Not that क्योंकि अब now I live very far away. First I used to live in the middle of the city. Now I myself live far away, तो अब मुझे वो रास्ता इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मतलब कि it was an hour of traveling and I used to go on a university bus, तो मतलब कि और टाइम हो जाता था। तो फिर मैं सुबह सुबह पॉडकास्ट सुनने लगी और वापसी पॉडकास्ट सुनने लगी, एंड आई रियलाइज्ड कि हाउ प्रोडक्टिव इट इज़ टू लिसन टू अ पॉडकास्ट एंड नॉट म्यूजिक, स्पेशली सुबह सुबह या शाम शाम के टाइम। आई थिंक यू आर लाइक टायर्ड, तो म्यूजिक इज़ फाइन, लेकिन सुबह सुबह आई थिंक लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, और यू आर लर्निंग समथिंग and it's good. Or मैं personally, I don't know about you guys, but I get bored of music, क्योंकि I do have a playlist, or I like listening to it, लेकिन मतलब कि मैं एक गाना I'll be obsessed with a song for a week or two, but then I'll get bored of it, so I can't listening to same music again and again. तो इस वजह से आई थिंक पॉडकास्ट मतलब कि द डिस्कवरी ऑफ पॉडकास्ट, आई आई वाज लाइक ऑब्सेस्ड विद इट। फिर मतलब कि obviously you can like clean and listen to a podcast, you can
you can arrange your wardrobe and listen to a podcast, you can walk and listen to a podcast, you can drive and listen to a podcast. So it's a thing that you can do while you are doing another task. So it's a matlab ke to it's like a thing that can keep you entertained while you're doing a boring work. तो मतलब कि और मतलब कि I realized कि I am more excited to do that work, मतलब कि be it a house chore, be it a walk, be it anything else, when I'm like listening to a podcast with that. And because obviously I know people listen to songs with that, like, and it's much more productive that you're hearing something new, and you're if मतलब कि and there are every source of podcast available, एजुकेशन की पॉडकास्ट अवेलेबल है, एंटरटेनमेंट की है, लाइफस्टाइल है, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट you're listening to something and doing, तो you're multitasking, तो आप अपने दिमाग को भी अच्छा दे रहे हो और आप फिजिकली भी कुछ कर रहे हो। तो उससे आई रियलाइज्ड कि डैम आई रियली वांटेड टू डू दैट। आई वांट मतलब कि इफ यू नो मी यू वुड नो दैट आई वांटेड टू बी अ यूट्यूबर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट समथिंग अबाउट recording yourself, editing it, and then posting publicly scares the shit out of me। मतलब कि there are so many creepy people, तो मुझे लगता है कि ओ कोई मेरा स्क्रीनशॉट लेके ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो इस वजह से ना मुझे यूट्यूब से डर लगता है, लेकिन आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ यूट्यूबर। मे बी आई वुड विल बिकम वन इवेंचुअली, लेट्स सी, वी डोंट नो। लेकिन विद पॉडकास्ट आई नो दिस इज अ सेफ प्लेस। आई नो कि नो वन हु मतलब कि जो क्रीपी लोग हैं दे वुड नेवर लाइक गो टू अ गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई। क्यों? और मतलब कि दे वुड गो टू स्पॉटिफाई बट दे वुड नेवर लिसन टू अ पॉडकास्ट। तो आई नो दैट whoever is listening to it uh, have a good intention, or have or is similar to me and is somehow keen to be listening to me, or I don't know, I can explain, but matlab कि this is a safe place. तो matlab कि for podcast, it's matlab कि obviously the platforms are not matlab कि especially in Pakistan, I know for the fact कि not a lot of people listen to the podcast on the podcast world or Google podcast or um और स्पॉटिफ़ाई। क्योंकि मैं यही मतलब कि ना अपने इंस्टाग्राम पे बता रही थी कि आई डोंट नो हू विल लिसन टू मी, क्योंकि द पीपल आई नो लाइक माय फ्रेंड्स इन रियल लाइफ डोंट लिसन टू पॉडकास्ट ऑन दीज़ प्लेटफॉर्म्स, दे लिसन टू पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पे ये होता है कि उन्होंने साथ वीडियो डाली होती है और साथ वो बोल रहे होते हैं, विच टू मी मतलब कि मैं वैसी पॉडकास्ट नहीं देख सकती, क्योंकि फॉर मी पॉडकास्ट इज समथिंग दैट आई एम लिसनिंग व्हाइल आई एम डूइंग समथिंग एल्स, व्हाइल आई एम वर्किंग, ये वो। तो मैं वीडियो तो देख नहीं सकती, तो मुझे ऑडियो का ऑप्शन ज़्यादा पसंद है। और या मतलब तो इस वजह से आई थिंक कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा लोग पॉडकास्ट सुनते हैं वो मोस्टली यूट्यूब पे ही सुनते हैं और साथ साथ देखते भी हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज़, लेकिन बट मुझे लगता है कि स्पॉटिफ़ाई जो है वो पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम से हो गया है। आई नो सम पीपल आर स्टिल यूजिंग साउंड क्लाउड और MP3, व्हिच इज़ टोटली फाइन, लेकिन आई थिंक मतलब कि स्पॉटिफ़ाई अ लॉट ऑफ पीपल आर स्विचिंग टू स्पॉटिफ़ाई। तो उस पे दिस वुड बी अवेलेबल, और I cannot wait to know how what people think about it. So so the thing is that why for the longest time for 3 years I couldn't start a podcast, because I had this thought that I can only start a podcast if I have a mic, a good mic. ठीक है, and I have a huge system और ये वो flan flan and have a studio, क्योंकि this was what I was seeing। और तो then I मतलब कि did a little research और I figured it out कि how to post it, how कहाँ पे आपने edit करना है, ये करना है, वो करना है। तो उस वजह से जो है मुझे फिर आई मतलब कि फिर ना मैंने अपने मेरे पास आई हैड 2 माइक्स, व्हिच वाज़ वन इज़ ईयरफ़ोन माइक एंड अदर इज़ आई हैव वन वायरलेस ईयरफ़ोन जिसको एयरपॉड भी कहा जाता है, लेकिन वो एप्पल के नहीं है। दोनों माइक हैं मेरे पास, व्हिच आर नॉट दैट हेवी ड्यूटी माइक। So but I recorded it and it sounded good. So and I really don't wanted to invest a huge sum of money on a mic, क्योंकि um, I don't know right now कि मतलब कि मतलब कि if I would even earn from this or not, I don't think, or I am not doing this because I want to earn from it, I am doing this because मुझे इस चीज़ का शौक है। तो इस वजह से
मैंने वो अपनी चीज़ ज़हन में निकाल दी। तो मैंने कहा कि मुझे अभी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस पे नहीं करनी। हाँ, इफ इट गोज़ वेल और आई गेट अ, गुड फीडबैक, देन आई विल लाइक वांट टू इन्वेस्ट इन अ माइक, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इफ आई एम गेटिंग एनी अर्निंग फ्रॉम इट और नॉट। लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब कि ईयरफ़ोन माइक, मतलब कि आई रियली अंडर एस्टिमेटेड इट, बट इट गोज़ वेरी वेल। एंड देन you won't be able to believe me, lekin I'm actually in my storeroom. I covered the whole storeroom with blankets and everything, क्योंकि मतलब कि I saw कि they absorbs the voice and makes it a bit bearable। तो इस वजह से आई एम इन माई स्टोर रूम राइट नाउ, विच इज़ गुड, क्योंकि वैसे ही मुझे सबसे बड़ा मेरा यही था कि घर में तो इतना शोर होता है, तो हाउ वुड बी आई एबल टू रिकॉर्ड इट। तो आई एम इन माई स्टोर रूम राइट नाउ एंड आई रियली रियली होप दैट नो वन कम्स इन, क्योंकि फिर आई डोंट नो कि मैं कैसे एडिट करूँगी, क्योंकि आई डोंट वांट एनी कट्स इन इट, मतलब कि मैं बस बोलती रहूँ। फिर एंड द थिंग इज दैट के आई हैव बीन वेरी, मतलब कि इफ़ यू नो मी, यू नो फॉर द फैक्ट दैट आई हैव बीन वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, स्पेशली कोविड के बाद से, इन थिंग्स वेयर आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। मतलब कि आई थिंक दैट if I have a skill outside of what I have a degree in, then that's that I can do speaking very well. I मतलब कि I love the idea of public speaking. I like the idea of मतलब कि जब हमारी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन होती थी, तो मैं सब मतलब कि सारे घबरा रहे होते थे कि ओ हमें नहीं बोलना, विच इज़ लाइक completely fine and understandable। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शौक होता था प्रेजेंटेशन में बोलने का, एंड आई वॉज ऑलवेज बी द पर्सन हु would do the introduction, और अगर एक बंदे ने करनी है तो I would always volunteer to do the presentation। और तो इस वजह से आई थिंक दैट, और मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स अपने टीचर से मिलते थे कि ओ यू शुड हैव बिन अ रिपोर्टर, और यू शुड हैव बिन मतलब कि यू शुड हैव बिन इन मीडिया। और मुझे याद है फिर एक बार मीडिया के स्टूडेंट्स थे, तो दे रैंडमली जस्ट आस्क्ड मी कि ओ डू यू वांट टू गिव एन इंटरव्यू रियल क्विक, वी हैव दिस प्रोजेक्ट, और मैं वो इंटरव्यू दे रही हूँ। तो फिर मुझे 2 हफ्ते बाद कहते हैं कि आवर टीचर रियली एप्रिशिएटेड यू। तो दैट वाज़ मतलब कि, तो उससे मुझे बहुत बूस्ट मिला, ईगो बूस्ट। और फिर देन आई होस्टेड अ लॉट ऑफ इवेंट्स, व्हिच इज़ मतलब कि मुझे लगता है कि सिटिंग हियर राइट नाउ, मतलब कि इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आई एम स्पीकिंग टू माई सेल्फ, लाइक देयर इज़ नो वन इन फ्रंट ऑफ मी जिसके बारे में मैंने आई हैव रिटन थिंग्स ऑन माई डायरी, और मैं वो देख देख के बोली जा रही हूँ। तो इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक फॉर एन आवर एंड इट्स बिन 13 मिनट्स, और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अरसे से बोल रही हूँ। लेकिन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन होल ऑडियंस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट्स अ completely different experience। So I have done event hosting, I have done seminar hosting, I have not been able to do open mics, जो मेरा एक्चुअली मतलब कि मैं करना चाहती हूँ। और लेट्स, मुझे लगता है जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो तो अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम अप, लेकिन अब आई हैव ग्रेजुएटेड लाइक मुझे लगता है मुझे ये पहले बता देना चाहिए था। आई गॉट ग्रेजुएटेड इन सितंबर ऑफ 2022, नॉट सितंबर एक्चुअली, अगस्त ऑफ 2022। नाउ आई एम डूइंग अ जॉब, आई डिड अ डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और आई हैव अ रिमोट जॉब, जिसकी वजह से the option of recording a podcast or doing an extra activity opens up, क्योंकि I'm doing a remote job and I'm very grateful for that। और मैं अपनी करियर वाली जो जर्नी है सारी, वो आई लाइक मतलब कि डू इट इन अनदर पॉडकास्ट, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लव टू टेल, आई थिंक इट वुड इंस्पायर people, or people would like to hear, some people know it क्योंकि obviously they have physically seen me going through those stages। और मतलब कि आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट ऑन ट्विटर। आई यूज ट्विटर अ लॉट, मतलब मैं आई लिव ऑन ट्विटर। आई डाउनलोडेड ट्विटर व्हेन आई वाज 14 एंड दैट वाज टू फैन गर्ल अ शो। लेकिन उसके बाद दैट ऐप इज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू मी। मतलब कि जब हम हमारे साथ कुछ होता है, तो हम सोचते हैं ना कि ओ आई कांट वेट टू टेल दिस टू माई बेस्ट फ्रेंड। मैं सोचती हूँ कि ओ आई कांट वेट टू ट्वीट ऑन दिस। तो इफ एनीवन फ्रॉम ट्विटर इज लिसनिंग टू दिस, तो शाउट आउट टू यू, आई लव यू सो मच। तो उसके अलावा मतलब कि इंस्टाग्राम, आई लाइक इंस्टाग्राम, बट इंस्टाग्राम ऑलवेज लाइक स्केयर्स मी, क्योंकि मैंने ना ये ट्वीट भी की थी। तो अब 2 दिन पहले ना हमारा मतलब कि मैं आई मतलब कि न्यू ईयर नाइट थी, तो आई वेंट टू एन इवेंट, और मैंने फिर उसकी स्टोरीज पोस्ट पोस्ट की। तो मैं उसके बाद मैं इतना, मुझे लगता है कि जब मैं इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करती हूँ ना,
तो एवरीवन सीक्रेटली जजेस मी, laughs at me और स्पेशली द पीपल आई नो इन रियल लाइफ, मुझे लगता है कि व्हाई आई एम सो कंफर्टेबल सिटिंग ओवर हियर टॉकिंग टू माई सेल्फ और पिछले 15 मिनट से, और मेरे साथ भी कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम सो यूज टू इट, और मैं अपने शीशे में देख के अपने आप से बात करती हूँ मैं ट्विटर पे, तो मुझे लगता है आई एम मच मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स देन टू टॉक टू पर्सन हु नो मी इन रियल लाइफ, क्योंकि आई थिंक क्योंकि वो लोग जज करते हैं, समवन हु डजंट नो यू डोंट केयर द शिट अबाउट यू। तो इंस्टाग्राम, लेकिन आई मेड अ पब्लिक अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम विच यू शुड फॉलो मी, क्योंकि आई पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज देयर, वहाँ पे भी आई पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज देयर, or I basically vlog there. So I show haul, or if I do something interesting, or I share my point of view, which now I have a podcast, so I will share it over here. लेकिन there I vlog a little bit. तो उधर भी मैं पोस्ट करते हुए ना मुझे डर लगता है कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा, बट देयर आई एम मोर कंफर्टेबल, और मैंने अपने किसी इन रियल लाइफ को बताया हुआ भी नहीं है कि आई हैव अ पब्लिक अकाउंट, लेकिन अब उनको पता लग जाएगा, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू शेयर द पॉडकास्ट ऑन माय रियल अकाउंट कि हे आई हैव अ पॉडकास्ट, बट आई नो फॉर द फैक्ट कि अगर यूट्यूब चैनल हो ना, तो मुझे पता है कि यू आर वेरी इजी टू फाइंड, और पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे लगता है आई नो फॉर द फैक्ट कि इवन जो मेरे इन रियल लाइफ हैं जो ऐसे हैं, नो वन वुड डू द एफर्ट ऑफ डाउनलोडिंग गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई और ये वो, और मुझे सुनेंगे 1 घंटे के लिए, शायद 5 सेकंड के लिए सुन रहे हैं, तो वी आर फाइन विद अ पॉडकास्ट। तो इस वजह से मतलब मुझे याद ही नहीं है कि मैं क्या बात कर रही थी और इस तरह से निकल आई। लेकिन जो है हाँ, मैं इस वजह से, और एक और चीज़, मुझे ना सबसे बड़ा ये है कि मैंने जितने भी मोस्टली लोगों को सुना है ना पॉडकास्ट में, वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी फेमस हों, और उनका ऑलरेडी यूट्यूब हो, या वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी हो, या फिर मतलब कि कुछ हो, और उन्हीं को लोग मतलब कि सुनना चाहते हैं, विच मेक्स सेंस ऑब्वियसली। लेकिन आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, तो आई डोंट नो इफ एनीवन वांट्स टू लिसन टू मी और नॉट, लेकिन the thing is that ke with a podcast is a much more deeper level conversation, more human level conversation, तो मुझे लगता है विद celebrities it sometimes get unrelatable, और मतलब कि इन्फ्लुएंसर्स हु हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑब्वियसली दे आर रिकॉर्डिंग इन अ ह्यूज ह्यूज तो नहीं, लेकिन अ गुड स्टूडियो एंड वो सब कुछ, तो इट गेट्स अ लिटिल अनरिलेटेबल फॉर मी, और आई डोंट मतलब के enjoy listening to them, तो I was actually searching for podcasts जो कि मेरे जैसे आम लोग करते हैं, तो for me I know for the fact कि I can be more relatable to people, or I can have a more like that deeper level connection with people, क्योंकि I have been through, yeah, I am going through some stuff that people of my age, or the people that are younger than me or older than me are going through, and they will relate. I'll have a lot of pronunciation issues, so bear with me. Lekin they'll relate to me much more than they'll relate to some other celebrity. So I hope this is enjoyable. Like I hope this is entertaining for someone. So you're listening to this on 4th of January, I believe. So it's the first week of the new year. So the 2023 the year 2023 started, और I had this goal कि यार मुझे न्यू ईयर के पहले वीक में जो है वो पॉडकास्ट लॉन्च करनी है। आई हैड गिवन माई सेल्फ दिस डेडलाइन कि क्योंकि मुझे लगता है समटाइम्स यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन, और क्योंकि यू वर्क मोर प्रोडक्टिवली व्हेन यू हैव अ डेडलाइन, तो ऑब्वियसली मतलब कि इट्स मतलब कि मुझे कोई मतलब कि नो वन गोना अरेस्ट मी अगर मैं ये पोस्ट नहीं करूँगी वेडनेसडे को, लेकिन आई थिंक दैट आई शुड गिव माई सेल्फ दिस प्रेशर, क्योंकि एल्स आई वॉन्ट डू एनीथिंग, जैसे मैं 3 साल से नहीं मैंने लॉन्च की, लेकिन न्यू ईयर स्टार्टेड, और आई एम मैंने ये ट्विटर पे भी बताई हुई है बात कि लास्ट ईयर हैड बीन लाइक रियली अमेजिंग फॉर मी, क्योंकि आई मतलब कि पता नहीं मुझे ये करना चाहिए था या नहीं, लेकिन खैर, तो न्यू ईयर started and the last year have been like very productive,
एंड गुड फॉर मी, मतलब कि मेरे मेजर डेवलपमेंट हुई। आई शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस, जैसे मैंने बताया कि पहले मैं मिड सिटी में रहती थी, शहर के बीचों बीच, अब मैं बहुत दूर आ गई हूँ, बट इट्स ऑब्वियसली अ नाइस, एंड नाउ आई लिव इन अ अपार्टमेंट। पहले हम लोग एक घर में रहते थे, तो दैट वाज अ ह्यूज शिफ्ट। और मुझे लगता है कि एरिया, मतलब कि अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करें, स्पेशली अगर आप लाहौर से कर रहे हैं, तो मैं एक एरिया से उठ के दूसरे एरिया में गई, और कम्प्लीटली इन्वायरमेंट चेंज, कल्चर चेंज है यहाँ पे। तो इस वजह से इट वाज वेरी न्यू टू मूव इन हियर। लेकिन ऑब्वियसली, क्यों, आई स्पेंड लाइक 20 years ऑफ माई लाइफ इन दैट प्लेस, तो मुझे लगता है कि जो मेरे ट्रेड्स डेवलप वहाँ से होने थे वो वहाँ हो गए हैं। एंड आई स्टिल बी दैट गर्ल, मतलब कि the place name is Allama Iqbal Town Green Market. So if anyone knows, so I still refer to myself as that girl, even though now I am shifted to a very like a good area. Good, मतलब के uh I don't know how to explain it, but it's like the मतलब कि ये जो मेरा जिस जहाँ मैं रह रही हूँ, it's like ओन बाय आर्मी। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जहाँ जो चीज़ आर्मी ओन करती है, तो उसके साथ हम वैसे ही एक लेबल लगा देते हैं, इंक्लूडिंग मी, आई एम लाइक अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। और द एरिया इज़ नाइस, और ऑब्वियसली आई एम लिविंग आसपास डिफेंस है, विच इज़ लाइक द बिगेस्ट लाइक सुपीरियॉरिटी हमारे मुल्क में, तो वो भी, और ऑब्वियसली वो भी आर्मी का ही मतलब कि ओन्ड चीज़ है। तो ऑब्वियसली मतलब कि देयर इज़ अ शिफ्ट, मतलब कि कल्चर वाइज और इन्वायरमेंट वाइज। तो मुझे, लेकिन स्टिल आई थिंक कि नाउ, इवन दो आई स्पेंड, इवन दो आई विल बी स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ माई लाइफ हियर, नॉट ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन इवन इफ आई स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन दिस एरिया, आई वुड नेवर चेंज, क्योंकि दैट द मिड सिटी एरिया वाज वेयर आई ग्रोड, if that makes any sense. लेकिन the new year is here, and did you all made a new year resolution? Is it a thing? मतलब कि I never did। और असल में पता है क्या होता था, growing up it never felt like new year, क्योंकि I always had exams ऑन द न्यू ईयर। मतलब कि फर्स्ट की शायद फर्स्ट जैन की छुट्टी होती थी, सेकंड जैन को मेरा एग्जाम होता था, या स्कूल होता था, या मतलब कि इट वाज नॉट दैट एक्साइटिंग, क्योंकि जो है आपका एग्जाम है। और मुझे लगता है कि न्यू ईयर से ज़्यादा इट्स मोर न्यू ईयर फॉर अस व्हेन वी आर प्रोमोटेड टू अ न्यू क्लास, और मतलब कि हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो तब हमारे मतलब कि ज़्यादा मतलब कि होता है कि ओ इट्स अ न्यू बिगिनिंग, मतलब कि एज कम्पेयर टू अ न्यू ईयर। तो मुझे लगता है कि इट नेवर व्हाई, मतलब कि वी आर लाइक ओ इट्स जस्ट द सेम, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस इट्स जस्ट अनदर डे। तो व्हाई वी पीपल आर सेलिब्रेटिंग इट सो मच और सेइंग कि ये कर लेना, वो कर लेना, व्हेन इट्स जस्ट अनदर डे, मतलब कि कल दिसंबर था, आज जनवरी है। मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा मतलब कि इट्स ऑल इन आवर माइंड। ठीक है, सबसे पहले आपको, सबसे पहले तो कुछ चेंज इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि मौसम नहीं चेंज हुआ, वही मौसम है। इट वाज ग्लूमी ऑन 31st, इट्स स्टिल ग्लूमी ऑन 1st जनवरी। छुट्टी है, वही आप खा रहे हो, पी रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर मतलब कि ये है कि ओ आप 1st जनवरी में एक नई क्लास में प्रमोट हो दो, तो दैट्स अ चेंज, ठीक है ना, दैट्स एन अपग्रेड। तो आपको एक मतलब कि फुल चेंज फील होता है कि ओ दिस चेंज, लाइक माय लाइफ इज अप चेंज्ड या इट अपग्रेडेड। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली देयर इज नो चेंज, बस एक तारीख चेंज हो गई है, जो कि हम पहले 2-3 हफ्ते तक तो 2022 ही लिखते रहेंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट्स ऑल इन द माइंड एंड हाउ वी परसीव इट और हाउ वी डू इट फॉर आवरसेल्फ। मुझे लगता है कि हम ना अगर जो लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं और फिर दे आर समहाउ नॉट एबल टू फुलफिल देम, वो इसलिए होता है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ओ मैंने 2023 में सुबह 6 बजे उठना है, और मैं 1st जनवरी को नहीं उठी, तो मैं कहूँगी कि सुबह 6 बजे नहीं उठी, तो मैं कहूँगी कि ओ आई फेल्ड इन माय रेज़ोल्यूशन, बाय बाय, वी विल सी इन 2024, हम देखेंगे कि क्या होता है। जैसे देयर इज़ अ वेरी फेमस मीम, इफ गाइस हैव सीन, कि हम लोग सोचते हैं कि यार मतलब हमने पढ़ना है और हमने 6 बजे पढ़ना है, और हम रेस्ट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमने 6 बजे पढ़ना है, और 6 बज के 5 मिनट हो गए हैं, तो हमने टाइम देखा है 6 बजे गुज़र चुके हैं और 6 बज के 5 मिनट हो गए हैं हम, तो वी आर लाइक अब हम 7 बजे पढ़ेंगे। तो दिस इज़ मतलब कि क्योंकि ना हम बीच मतलब कि मतलब कि हम कहते हैं कि हमने अगर मंडे को ये काम नहीं किया, तो अब हम ये नेक्स्ट मंडे ही करेंगे, लाइक
अब हम पूरा हफ्ता कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ वेयर वी फेल, कि हमने अपने लिए ना एक टाइम रखा हुआ है कि हमने इसी टाइम करना है। यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि इट्स ओके if you are not able to do this specific task on this day. I always think the change is gradual. Mera 2022 was the year where I changed the most, and I cannot specify a single day कि मेरे को इस दिन के बाद से मैं change हो गई थी, ऐसा नहीं होता, it's been always gradual. तो मुझे लगता है कि डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ ऑन थिंकिंग कि आई हैव टू चेंज, और मैं 31st को अगर ऐसी हूँ तो नहीं, मैं फर्स्ट को पूरी चेंज हो जाऊँ, क्योंकि दैट वुड नेवर हैपन. चेंज इज ऑलवेज रियलिस्टिक एंड वेरी ग्रेजुअल, इतनी ग्रेजुअल कि आपको कभी कभी पता भी नहीं चलेगा, और अगला बंदा आपको बता रहा होगा कि दिस थिंग इन यू चेंज्ड. तो इस वजह से डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. if whatever resolution you made, you're not able to fulfill it for the past like 4 days, कितने दिन हो गए हैं, 3 days, तो you can still like do it. मुझे लगता है एवरी मंडे इज अ न्यू ईयर, मतलब कि एवरी मंडे, एवरी डे, मतलब कि जब आप हर सुबह आपके लिए एक नया चांस होता है कि आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर सको, या जो आपके मतलब की चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उसको आप अपने लिए बेहतर बना सको. तो डोंट डू दैट कि ओ मेरा रेजोल्यूशन, मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि डू मेक रेजोल्यूशन बट डोंट वेट फॉर अ न्यू ईयर टू, मतलब स्पेशली जो इमोशनल वाले होते हैं ना कि ओ आई choose to be happy for 2023. You don't have to wait for 2023 to be happy. You can start being happy for, मतलब कि अगले दिन से, मतलब मुझे, और मुझे लगता है कि obviously happiness is an emotion. Sometimes you have a control over it, sometimes you don't have a control over it, and you can, मतलब कि अगर आप कहते हो ना कि ओ मुझे खुश रहना है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको खुशी मिले. यू कैन जस्ट स्माइल एंड से ओ आई एम हैप्पी, मतलब कि ऐसा नहीं होता, आपको कुछ करना पड़ता है जिससे आपको खुशी मिले. यू हैव टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, यू हैव टू डू देम फॉर योर सेल्फ, एंड यू हैव टू, मतलब कि देन फील हैप्पीनेस एंड लेट योर सेल्फ फील इट. क्योंकि मुझे लगता है कि इट ऑल्सो इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन आवर माइंड. मुझे ये चीज़ समझानी नहीं आ रही शायद, या नहीं करनी आ रही, लेकिन इफ यू, मतलब कि if there's something happens, मुझ मतलब कि I have seen a lot of people who don't let themselves be happy, क्योंकि they get so hard on themselves thinking कि oh I don't feel it, or I don't know how I can explain this, लेकिन if you get it you get it. This that was a shot in a dark. लेकिन for मुझे, मतलब कि for me it's like कि I don't go hard on myself when it comes to emotion. If I'm happy, I'm happy. If I'm sad, I'm sad. अगर आई एम, मुझे अपने आप को ज़बरदस्ती खुश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप को ज़बरदस्ती उदास करने की ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि कुछ लोग जो हैं वो दे ट्राई सो हार्ड ऑन देमसेल्फ टू बी हैप्पी, व्हेन, मतलब कि जबकि आपका काम इतना अपने आप क्योंकि अगर आप अपने आप पे इतना जोर डाल रहे हो तो यू वॉन्ट लाइक बी हैप्पी, एक्चुअली बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन इट, मे बी मुझे, मतलब कि वील डिस्कस इट ऑन सम अदर डे. लेकिन ये सीन है. लेकिन अच्छा, फॉर मी अ न्यू ईयर, मतलब कि मैं अपना न्यू ईयर मतलब कि आई डोंट हैव अ रियली हैव अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, लेकिन व्हाट आई वांट टू रियली लर्न दिस ईयर इज नो हाउ टू knit अ स्वेटर. और मैं, दिस इज वेरी रैंडम, लेकिन जिस दिन 3rd December था, उस दिन, इफ यू नो देयर इज अ कॉन्ग्रेस सॉन्ग नेम हैदर, तो उस दिन एवरीवन वाज लाइक ओ दे डोंट हैव अ स्वेटर. और मैं ना काफी अरसे से देख भी रही थी कि अ लॉट ऑफ पीपल लाइक द knitting इज लाइक, क्योंकि आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय मॉम, तो वो कहती हैं कि जब वो मेरी उम्र की थी तब निटिंग, मतलब कि तब ना निट किए हुए स्वेटर जो थे उनको समझा जाता था कि ओ यू आर वेयरिंग अ knitted स्वेटर, यू मेड इट ऑन होम, यू लुक एट मी आई हैव अ ब्रांडेड स्वेटर, मतलब या मैंने स्टोर से लिए, ओ यू, मतलब कि उस वक्त जो है ना वो कुछ समझा जाता था कि, मतलब कि knitted स्वेटर जो है इट्स वेरी ओल्ड फैशन. और अब आके मुझे लगता है इट्स वेरी, मतलब कि स्विच हो गया हुआ है, मतलब कि knitted sweaters आर वेरी अप्रिशिएटेड, लव्ड, और इज द बेस्ट गिफ्ट एवर. सो आई रियली वांट टू लर्न हाउ टू knit, और मुझे लगता है ऑब्वियसली मैं इतने जल्दी तो सीख नहीं सकती थी, तो आई हैव गिवन माई सेल्फ अ ईयर टू नो हाउ टू knit. और उसके लिए मुझे जो है वो
निटिंग नीडल्स लेनी पड़ेंगी जो कि मैंने अभी तक ली नहीं। टॉक अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि यही बात है कि अगर आप इट टेक्स अ लॉट to develop a skill on your own, मतलब कि खुद, if you're going to a class or someone is teaching you or someone says कि आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ, इधर आओ मेरे पास, मतलब कि कोई आपको कर रहा है, तो मुझे लगता है इट्स वेरी इजी। लेकिन और मतलब कि लोगों को लगता है कि खुद काम करना आसान है, लेकिन खुद उठ के टू गेट अप एंड गो आउट ऑफ द वे एंड लर्न अ न्यू स्किल इज सो डिफिकल्ट। और इसी से मतलब कि मुझे लगता है कि आई ऑब्वियसली रिसेंटली गॉट ग्रेजुएटेड, तो इट वाज सो इजी टू बी इन अ क्लास एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड नो अबाउट, क्योंकि ऑब्वियस मतलब कि एंड नो अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग और डिस्कशन हो रही थी। बट नाउ इट्स सो हार्ड टू लॉग ऑन टू, मतलब कि टू गेट न्यू न्यूज़ और एजुकेट माई सेल्फ, और मतलब कि मैं बैठ के मतलब कि ऑब्वियसली आई वुड ऑलवेज वांट टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो ऑफ मतलब कि daily vlog of someone and not what not about cryptocurrency or मतलब कि other things that are happening। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट्स सो इजी कि अगर आपको कोई और बैठ के बता रहा हो और आप पूछो भी ना और वो आपको बता रहा हो और आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए, लेकिन अगर आपने अपने आप को खुद एजुकेट करना है तो मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो। मुझे नहीं पता इफ एनीवन रिलेट्स टू इट्स और नॉट, लेकिन दिस इज, लेट मी नो इफ यू रिलेट टू इट, लेकिन दिस इज द New Year, the only New Year resolution is that कि I want to learn how to knit, which is a very मतलब कि मुझे लगता है लोगों के ज़रा मतलब कि डीपर लेवल के होते हैं कि ओ आई डू दिस और आई विल अचीव दिस, बट मुझे लगता है कि फॉर मी इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आई टू गेट एडमिशन इन अ मास्टर्स डिग्री दिस ईयर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने नहीं, दैट्स ऑल्सो मतलब कि जैसे मैं बता रही थी ना कि ओ यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर सेल्फ, अब बैचलर्स तक आप पे डंडा होता है ऑब्वियसली कि पढ़ना है, मतलब कि नो वन मतलब कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं भाई पढ़ना है। अब विद मास्टर्स इट्स माय चॉइस कि मैं मास्टर्स करूँ ना करूँ, और मुझे लगता है कि खुद से डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी मैं कहती हूँ ओ आई डोंट नीड टू डू मास्टर्स, कभी मैं कहती हूँ ओ आई शुड डू मास्टर्स। और अगर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली मुझे खुद यूनिवर्सिटी देखनी है, खुद इसकी प्रिपरेशन करनी है, खुद देखना है, खुद करना है, वो सब कुछ करना है। तो मुझे मतलब कि फॉर मी इट्स वेरी हार्ड टू थिंकिंग अबाउट इट। आई डोंट नो इफ समवन रिलेट्स टू इट, बट आई थिंक मतलब कि इट्स फैक्ट। अब जैसे मैं छोटी होती थी, स्कूल में होती थी जब, तो हमें आर्ट प्रोजेक्ट मिला करते थे, तो मैं हम लोग वो आर्ट प्रोजेक्ट किया करते थे। अब मैं ना कोई बहुत क्रिएटिव चीज़ देखती हूँ जो कि घर में बननी है, मैं उसको सेव कर लेती हूँ अपने पिंटरेस्ट में एंड आई नेवर डू दैट। तो मुझे लगता है कि माई गोल फॉर दिस ईयर इज़ टू पुश माई सेल्फ इन डूइंग थिंग्स दैट आई ड्रीम ऑफ डूइंग, बट आई एम टू लेजी टू डू इट। क्योंकि तो अच्छा, तो मतलब कि आई बीन टॉकिंग फॉर द पास्ट 36 मिनट्स, और मैंने वैसे सोचा था कि मैं ये पॉडकास्ट जो है वो आधे घं और मैंने ना अपने ना डायरी पे लिखा हुआ था कि दीज़ आर द थिंग्स दैट आई विल टॉक अबाउट, और उनमें से मैंने सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में बात की है और 6 चीज़ें पढ़ी हैं। तो मे बी वी विल डू इट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। आई वांटेड टू मेक दिस मतलब कि फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि अ, क्योंकि मुझे था कि ओह इट्स एन इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट, सो आई डोंट नीड टू मतलब कि, वरना बाकी जो मेरी होंगी दैट वुड बी फॉर एन आवर और 45 मिनट्स से ज़्यादा ही होंगी, लेकिन दिस वन मतलब कि आई वांटेड टू कीप इट शॉर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली it's the very first episode. So if you listen to this all of this, then I am so grateful for you and I would love to have your feedback. Or I hope I was not annoying, and I hope I'll make you listen to my next episode too. मुझे अब लग रहा है कि maybe I should like I should re-record it और मैं ये कर दूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता what I talked in it. लेकिन I hope it was somehow interesting for you, and I promise that other episodes would be more interesting. This was like a introduction. We'll touch on a specific टॉपिक एंड टॉक अबाउट इट, और अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं ट्विटर या अपने इंस्टाग्राम पे बता दिया करूँगी कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो इफ़ यू हैव एनी पॉइंट ऑफ व्यू तो लेट मी नो एंड आई रीड योर पॉइंट ऑफ व्यू आउट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट, अ लॉट ऑफ नहीं मतलब कि एक एक करके, आई वॉन्ट टू हैव गेस्ट्स ऑन माई पॉडकास्ट एंड आई हैव a lot of friends जो कि मुझे पता है who would love to come in and tell, और मतलब कि they are a very different human being from me, लेकिन I think that you will also get inspiration for them and it would be nice to interview them.
बट आई हैव टू फिगर इट आउट, क्योंकि अभी मेरे पास एक ईयरफ़ोन का माइक है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे 2 माइक्स चाहिए, कनेक्शन चाहिए, ये वो। तो मुझे टेक का आई नीड अ लॉट ऑफ एजुकेशन ऑफ टेक इसको करने के लिए, और हाउ थिंग्स वर्क। मुझे लगता है कि असल में आई नीड टेक, लेकिन मुझे वो मतलब कि इट्स अबाउट मतलब कि आई थिंक अ पर्सन हु स्टडीज़ मतलब कि मीडिया और वर्क्स बिहाइंड कैमरा वुड नो अबाउट इट, और मुझे इतने ज़्यादा लोगों का उस फील्ड से पता नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, or let's hope that we'll find a mic soon. But I'll मतलब के obviously have guests, especially मतलब कि I'm very excited to have my school friends over it, क्योंकि I all of them are like in interesting and different fields, and मतलब कि आजकल में मतलब कि whenever we talk तो we go on a very deeper level communication, and which is about emotions and people and how we feel about things, and they are so different from me, yet we somehow relate to things. So क्योंकि obviously we spent 10 years together, but now from the past 6 years we have been in our own world, and we have मतलब कि we are in different fields. So I think it would be very interesting to have them over and have their point of view, क्योंकि we know each other but we don't. But मुझे मतलब कि क्योंकि it's मतलब कि I've been having very interesting conversations with them, तो I think it would be very nice to have them over. उसके अलावा मतलब कि obviously I have very मतलब कि amazing or interesting people other than my school friends, so matlab ke we'll see, we'll figure it out. I also know amazing people online, and I want to like have them over on a podcast. And मुझे पता है कि आप online किसी बंदे से आप उनके साथ record कर सकते हो, but I need to figure it out too. So if you're listening this and if you are willing to come over here and speak about some things, so we would do it. Like I would love to have you over, क्योंकि मैं कब तक अपनी खुद से बात करती रहूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी एपिसोड्स जो हैं वो आपको मेरी सोलो सुननी पड़ेंगी, एंड आई होप आई वाज़ एंटरटेनिंग इनफ फॉर यू। इट्स बीन 40 मिनट्स, तो ओह आई मतलब कि लॉन्च अ न्यू एपिसोड एवरी वेडनेसडे, और आई डोंट नो व्हाई आई चोज़ वेडनेसडे। आई थिंक इट्स अ मिडडे। पहले तो ये है कि इट्स नॉट अ यूट्यूब वीडियो, तो इट डजंट हैव टू बी ऑन वीकेंड, क्योंकि मतलब कि फॉर मी मतलब कि मैंने जैसे बताया कि फॉर मी पॉडकास्ट इज समथिंग दैट यू डू व्हाइल यू डूइंग समथिंग एल्स, तो व्हिच यू आर डूइंग ऑन वीकडेज। तो आई थिंक पॉडकास्ट इज अ वीकडे थिंग। तो वी आर रिलीजिंग एवरी एपिसोड ऑन वेडनेसडे, क्योंकि इट्स अ मिड वीक। आई लव वेडनेसडेज, क्योंकि सबसे जो दो जो स्ट्रेसफुल डे होते हैं वो होते हैं मंडे और ट्यूसडे। तो वेडनेसडे को आके आप थोड़े से रिलैक्स होते हो, एंड यू आर एक्साइटेड फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे व्हिच आर मच मोर चिल। आई थिंक अगर आपके कोई ज़्यादा हेक्टिक डेज़ होते हैं तो आई एम सो सॉरी, लेकिन आई थिंक वेडनेसडे इज़ अ गुड डे। बट अदर देन दैट यू कैन लिसन टू इट ऑन एनी डे, एनी टाइम। ये नहीं है कि बस एक ही टाइम इट वुड बी लाइव, इट वुड बी देयर, यू कैन लिसन टू इट। प्लीज़ प्रे कि ये मतलब कि, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो स्मूथली हो ही गई होगी, तो लेट्स मैनिफेस्ट कि ये स्मूथली चली गई हो। लेकिन अदर दैन द पॉडकास्ट, इफ यू वांट टू फॉलो मी, देन आई एम ब्राउन गर्ल, द ब्राउन गर्ल rants on Instagram, or I post a lot of stories over there. Or if you want to follow me on Twitter, then that is Rabia is a mess, and I am very actively hardcore मतलब कि actively tweeting about every small detail of my life, so it would be very fun. And if you have listened to me for the 42 minutes, then yeah, thank you so much. I don't know what else to say, and I love you so much. And I'll be back on Wednesday, so please stick to me, क्योंकि I am looking for people, the active 3 listeners. एंड मतलब कि नेक्स्ट टाइम मतलब कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ मतलब कि मुझे नहीं पता इफ आई सेड एनीथिंग दैट ऑफेंडेड यू और यू डोंट एग्री विद, तो प्लीज लेट मी नो, लाइक आई मतलब कि मतलब कि वन थिंग दैट आई रियली वांट टू क्लेरिफाई, और मैं बोली जा रही हूँ लेकिन इज दैट के जो मैं चीज़ें यहाँ पे बोल रही हूँ दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन एंड थिंग्स दैट आई हैव सीन, और the things I went through, or the things I matlab ke experienced in my life. So you could have a completely different experience and you could not relate to it, and that's completely fine. I'm very open to constructive criticism, or I'll make sure that I don't say anything that hurt anyone's emotion. Lekin that's that. और नेक्स्ट टाइम मतलब कि जैसे द टॉपिक आई मतलब कि
द टच वाज हैप्पीनेस, मतलब कि मैं रुक गई क्योंकि आई वाज नॉट प्लानिंग टू टॉक अबाउट इट एंड आई हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अ बिट टू टॉक अबाउट इट. लेकिन आई एम पर्सनली अ वेरी लाइक हैप्पी पर्सन and I always see the bright side of things. So I would love to talk about that क्योंकि I know a lot of people um, मतलब के are मतलब के struggling with that. तो बस लेकिन थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़ और ट्यून इन नेक्स्ट वेडनेसडे और हैव अ ग्रेट वीक और लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. बाय.